Hello, everyone, and welcome to the mini course on transforming teachers into an entrepreneur. Looking for a real change in making a niche for yourself in the domain which you have been teaching for many years now? Well, in the next 10 minutes, you will learn how education sector is being transformed by the use of technology. What opportunities does OER brings to you in making you a global teacher or entrepreneur? How you can create your own online course with the world-class content in very less amount of time, and it will certainly help you to make more money and give you a kickstart towards starting your own training company. So sit with a notepad and make your brief notes as we go along with this short video, and I'm sure this will provide you a lot of solutions to the problem which you are looking for. Just to give you a background, we all know that in 1995, when internet arrived in India, no one could imagine that it will become such an important integral part of our lives. But very rapidly, it has become such an essential thing that we cannot imagine our life without it. Similarly, education sector, we never thought that teaching is going to happen remotely or online, right? Whether you like it or not, online would be the future of education. So, it is very important that we as educators upskills ourselves with the changing trends. So, what do you think? Before we move further, let me give you a brief background about myself. I am Archana Thakran, an educationist turned entrepreneur. I have a vast experience of working in higher education sector from last 8 years, where I have trained over 4,000 faculties in the use of ICT using open education resources. I was also invited by UNESCO to talk about the use of open education resources and how it can help in upskilling of the faculty. I have worked closely with government and private sector in educational and skill initiative over these years. Now you must be wondering, what is this OER and how I'm going to transform you into an entrepreneur? Well, first think about this question. In India, the training industry is a multi-billion dollar and precisely more than $90 billion industry it is. And today we see many unicorns from education sectors which are transforming the education. Be it Baiju, be it Unacademy, and many more. So learning has become personalized, and those who identify this need can create solutions according to the learner's requirement, right? Don't you think that you want to leverage or be a part of this growing industry? And if your answer is yes, then what is the first thing which you would be needing? The first thing would be, and of course, an online course. And what, according to you, would be the time and effort which you will need in creating an excellent online course? Would it be 3 months, 6 months, or it will depend on how much time and what skill set do you have for creating an online course? See, an online course, जब हम एक ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं तो उस ऑनलाइन कोर्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. मल्टीमीडिया फॉर्मेट, आपको एनिमेशंस आनी चाहिए, आपको वीडियो बनानी आनी चाहिए. सो क्या आपके पास वो स्किल सेट्स हैं? सो द फर्स्ट थिंग वुड बी, या तो आप पहले वो स्किल सेट सीखेंगे, उसके बाद आप अपना ऑनलाइन कोर्स बना पाएंगे, या फिर मैं आपको एक ऐसी सोल्यूशन प्रोवाइड करूं जहां आपको ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको मैं बताऊंगी कि आपके रिलेटेड डोमेन में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको कि आप ना सिर्फ फ्री में यूज कर सकते हो, बट आप उसको एडिट, मॉडिफाई, लोकलाइज सब कुछ कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट टू इट एंड विदाउट इन्फ्रिंजिंग एनीबडीज कॉपीराइट. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड that when it comes to online, free is something that there is no cost involved, but open is something जहां आप उसको customize, localize, edit, modify कर सकते हो without infringement of anybody's copyright. So हो सकता है मेरा जो मटेरियल है मैं फ्री दे दूं, बट वो मेरी कॉपीराइट मटेरियल रहेगा और मैं उसको परमिशन फर्दर रीयूज की ना दूं. तो आप उसको सिर्फ देख तो सकते हो, बट आप अपने ऑनलाइन कोर्स में उसको अपने नाम से या अपने
बैनर के अंडर बिना मेरी परमिशन के आप यूज नहीं कर सकते हो. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज फ्री एंड व्हाट इज ओपन. सो ओपन, फ्री इज without any cost. So free, 99% of the online resources are free, right? आप ऑनलाइन कुछ भी देख रहे हैं वो फ्री है, क्योंकि आपकी कॉस्ट क्या लग रही है, सिर्फ इंटरनेट की लग रही है. बट क्या आप उसको डाउनलोड करके अपने कोर्स में यूज कर सकते हैं? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू वुड बी इन्फ्रिंजिंग एनीबडीज कॉपीराइट इफ यू हैव नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल ऑथर. सो आई एम टेलिंग यू कि जब आप OER के साथ काम करते हो, आपको ओरिजिनल ऑथर से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ऑथर ने ऑलरेडी अपने ओपन लाइसेंस के अंदर ये मेंशन कर दिया है कि आप किन किन कंडीशंस में उसके काम को यूज कर सकते हो. कौन से ऐसे कंटेंट है जो आप एडिट, मॉडिफाई, इवन कमर्शलाइज, आप उससे यू कैन सेल इट and you don't have to share that revenue with the original author. So there is lot of power, lot of empowerment for a teacher or a subject matter expert when it comes to working with open education resources. So now, and you know, during this COVID, suddenly हम सब online पढ़ाने के लिए we were forced to, right? And there was not much of the training imparted to us as educators, as teachers, कि हमें कैसे एक अच्छी तरीके से ऑनलाइन हमें पढ़ाना चाहिए या अपना एक कोर्स बनाना चाहिए. बट नाउ दैट इट्स बीन मेनी मंथ्स नाउ, वी अंडरस्टैंड कि चैलेंजेस क्या हैं. चैलेंजेस ना सिर्फ कंटेंट के लिए है, बट चैलेंजेस उसके अराउंड एक पेडागॉजी बनाने के लिए भी है. सो वी वुड बी कवरिंग दीज एस्पेक्ट्स इन द कमिंग फ्यू मिनट्स. सो एक लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि एक ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए कौन सी अप्रोच बेस्ट होती है. सो लेट्स टेक एन एनालॉजी कि हम जब ऑफलाइन एक पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि ऑफलाइन कोर्स में ये जो भी मैं कोर्स, सपोज XYZ, उस कोर्स के 4 मॉड्यूल्स हैं, राइट? उस 4 मॉड्यूल्स को पढ़ाने के लिए मुझे 20 पीरियड्स चाहिए होंगे. 20 पीरियड्स के पहले 2 पीरियड्स में मैं ये मॉड्यूल पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगी. सिमिलरली ऑनलाइन कोर्स को भी बनाने के लिए सबसे पहले ये ब्रॉड स्केलेटन की जरूरत होती है. एंड इसी स्केलेटन को हम एक 4 क्वाड्रेंट अप्रोच बोलते हैं जब हम ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं, कि कैसे एक सिंपल तरीके से ऐसा कोर्स बनाया जाए कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए उस कंटेंट को समझने में. सो इट बिकम्स रियली वेरी चैलेंजिंग फॉर अ टीचर कि कैसे वो एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करे, बाय द वे मल्टीमीडिया कंटेंट, क्योंकि सिर्फ बच्चा ऑनलाइन में पढ़ेगा नहीं या आपके स्कैन नोट्स से नहीं पढ़ने वाला है. आपकी वीडियोस भी होंगी, उसमें सप्लीमेंट आप फर्दर रिसोर्सेज भी देंगे, टेक्स्ट बुक्स भी देंगे, एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी रखेंगे, एंड फाइनली आप उसकी असेसमेंट भी करेंगे. सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट अप्रोच विच वी से फॉर एनी ऑनलाइन कोर्स. सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज कंप्राइज ऑफ, एक आपने स्केलेटन बनाया, उस स्केलेटन में एक skeleton of the subject which you would be teaching, उसमें आपने उसको फर्दर डिवाइड किया इनटू लेसन प्लान्स कि 4 मॉड्यूल्स अगर मैंने पढ़ाने हैं तो पहला जो लेसन प्लान फर्स्ट मॉड्यूल का जो चैप्टर 1 होगा उसमें मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, दैट हैज टू बी वेरी वेल डिफाइंड. और जब आपका वो डिफाइन हो जाता है तब आप उसके अकॉर्डिंग आप उसकी इंट्रोडक्शन की एक वीडियो या उस टॉपिक को समझाने के लिए अपनी एक वीडियो बनाते हैं. नाउ दैट वीडियो कुड बी द सेम वीडियो जैसे मैं एक बना रही हूँ, आप मेरी प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं और आप मुझे भी देख रहे हैं. सो दैट बिकम्स अ वीडियो, राइट? सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे सिंपलेस्ट वे में टीचर अपनी वीडियो बना सकता है using his or her own presentation, right? So the first quadrant comprise of that audio and video lecture of that faculty की खुद की. Second quadrant जो होता है वो होता है e-content, जिसको कि आप सप्लीमेंट करते हैं OER के थ्रू या जो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिले हैं उनके लिंक के थ्रू. उसमें आप अपने हैंड आउट भी देंगे, प्रेजेंटेशंस भी देंगे, तो जितना भी सप्लीमेंट्री रीडिंग होती है वो क्वाड्रेंट 2 में रहेगी. क्वाड्रेंट 3 जो होता है वो होगा डिस्कशन फोरम्स के लिए, जहां आप हो सकता है हर रोज अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करें, या आप 15 डेज में करें या मंथली करें. दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कोर्स एंड द डिफिकल्टी ऑफ द कोर्स एंड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स यू वुड बी टारगेटिंग टू. एंड द लास्ट वन इज द असेसमेंट. कौन सी ऐसे असेसमेंट टूल्स हैं
जिससे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा है और वो इंगेज भी हो रहे हैं. सो देर आर plenty of such assessment tools which are available in the market today, and that too for free, जिससे आप अपने लर्नर्स की लर्निंग को assess कर सकते हो. Okay, so now these are the 4 quadrant things. Now let us now move to the next part and understand what is this open education resources, जो हम इतने टाइम से आप सुन रहे हैं कि open education resources के साथ हम कोर्स बनाएंगे. So by definition open education resources क्या होता है? So OER, in short form it is called OER, and these are the learning materials. Now वो जो learning materials है वो पूरा कोर्स भी हो सकता है, एक असाइनमेंट भी हो सकता है, एक वीडियो भी हो सकती है, एनिमेशंस भी हो सकती है, क्विज भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग जो रिलीज होता है ओपन लाइसेंस के साथ. एंड दीज आर द resources, learning material which are created by the elite universities of the world like MIT, Rice University, Harvard University, Stanford University, etc., etc. So till date there are more than 9 million websites which uses Creative Commons license or open licenses to their work. So बट द प्रॉब्लम इज कि हमें मालूम ही नहीं है पहली बात कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कॉपीराइट मटेरियल है या ये ओपन लाइसेंस मटेरियल है. सेकंड चीज है कि अब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको मैं यूज कैसे करूं. तो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. तो अभी व्हाट आई विल टीच यू, यू विल सी फ्यू एग्जांपल्स कि लाइव कैसे हम इस कंटेंट को ढूंढ सकते हैं कुछ तरीकों के द्वारा. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसकी बाय द वे इसकी फिलॉसफी क्या थी. OER के पीछे जो फिलॉसफी है वो सिंपल थी. इफ आई एम एन एजुकेटर, मैं अपना काम दूसरों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज फॉर मी नॉलेज इज एसेंशियली टू बी शेयर्ड विद अदर्स. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू कीप द नॉलेज विच आई हैव टू माई सेल्फ और टू द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. मतलब अगर मैं एक साल में सिर्फ 60 बच्चे पढ़ा पा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं एक साथ 1 लाख बच्चे पढ़ाऊँ या 2 लाख पढ़ाऊँ. एंड कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? दैट आई रिलीज माई वर्क अंडर OER ऑन सम repository. Okay, so my intention was to share my knowledge openly and freely with others. And second was the philosophy of OER was also that now that you suppose if I want to create a course, so what would be my first approach? अगर मुझे OER के बारे में मालूम है तो मैं पहले काम क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी कि कितना कंटेंट ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है. सपोज अभी 100% मुझे कंटेंट अपने आप बनाना है तो पहले मैं क्या करूंगी, आई विल सी ओके 60% तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 40% ही मुझे बनाना है. सो डोंट यू थिंक कि मेरा काम काफी कम हो गया है अगर मैं OER को अडॉप्ट करूं अपनी टीचिंग एंड लर्निंग में. सो there are many added advantage. You get a brand value, you get recognition worldwide. So now let us see what are the simplest way जिससे आप ये जो content है जो open license के अंडर रिलीज होता है उनको कैसे हम ढूंढ सकते हैं. So the first way would be advanced Google search. Advanced Google search करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे Google पे. तो हमने अपनी सर्च क्वेरी डाली, तो मैंने सर्च क्वेरी डाली सेल साइकिल. आप अपनी सर्च क्वेरी डालिएगा जो भी रिस्पेक्टिव डोमेन में आप काम कर रहे हैं. सो जस्ट एंटर योर सर्च क्वेरी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. सो वंस नाउ दीज आर द रिजल्ट्स. जो जितने सारे रिजल्ट्स हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉपीराइट मटेरियल एंड ओपन लाइसेंस मटेरियल. सो अब इसमें से आप कैसे ढूंढोगे? सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एडवांस सर्च. सो हम एडवांस सर्च में जाएंगे और एडवांस सर्च क्लिक करने के बाद देर वुड बी अ पेज विच विल ओपन, एंड लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज यूसेज राइट. अभी इसमें कोई लाइसेंस के तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हुई है. सो व्हाट वी विल क्लिक ऑन दिस यूसेज राइट एंड फ्यू थिंग्स ड्रॉप डाउन मेन्यू से खुलती हैं that we want to use it even for commercially. This is one of the open license, right? So हमने इसको चूज किया एंड अब जो रिजल्ट आए, ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये OER हैं.
all these results are OER. Okay, so how do you check whether this is an OER or not? So let us see. We will open the page of one of the results by Lumen Learning. So Lumen Learning के इस पेज में कोई भी लाइसेंस अगर हमें चेक करना है तो वो हमेशा लास्ट में आपको दिखेगा. So this is CC license content. CC stands for Creative Commons licensed, and this was originally authored by OpenStack. This is by Rice University. So that means जो Lumen Learning ने भी जो ये कंटेंट बनाया है ये ऑलरेडी रीयूज करके बनाया है. सो ये जो ओरिजिनल जो कंटेंट था वो CNX कनेक्शंस पे अवेलेबल है, और this has been reused by Lumen Learning, and suppose if I want to reuse it, I would reuse it and will attribute the original author. So इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपको रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी देयर इज अ वर्ल्ड क्लास कंटेंट अवेलेबल जिसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझाई गई हैं, तो मैं उसी को यूज करूंगी, उसी को रिपर्पस करूंगी, या इसको अगर मुझे फर्दर कोई एग्जाम्पल ऐड करना है, कैन ऐड दैट एग्जाम्पल एंड माई कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रेडी. ओके, सो दिस वॉज द वन वे. नाउ लेट अस सी व्हाट इज अनदर वे टू फाइंड द कंटेंट on. So there is this beautiful repository called oercommons.org. So you will go on that site. Okay, so OER Commons is a repository जहाँ जितना भी कंटेंट है वो ओपन लाइसेंस के साथ ही रिलीज होता है. तो यहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कोई कॉपीराइट मटेरियल है या कोई ओपन लाइसेंस मटेरियल है. सो व्हाट यू विल डू इज यहाँ पे हमें सिर्फ सेग्रीगेट करना है कि कौन कौन से जो कंटेंट कौन कौन से लाइसेंस, देयर आर 6 क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, उन 6 में से हमें कौन सा यूज़ करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट इन माई सर्च क्वेरी and I'll see what results do I get. So I get 121 results for the search query. Now I need to see कि मैं मेरे काम के कौन सा content है. Now there are two things. One is I can filter out these results, 121 results from the material type, that what kind of material I am looking for, whether I am looking for an assessment, क्या मैं full course के बारे में देख रही हूँ, या मैं illustration देख रही हूँ, या मैं interactive देख रही हूँ, lecture देख रही हूँ, या मैं simulations देख रही हूँ, या text book देख रही हूँ. So for example, if I have to see a simulation for this particular topic, so I'll get out of 121, these are only 4 topics which I get. So and I'll see what kind of license this content, open license these are being used. So this is CC BY, which is the most accommodating and most जिसको बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा freedom हमें मिलती है. So this is by University of Colorado, and I'll click on this resource. Now इसमें how this branding is done. Now you will see कि इसका लिंक जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, बट ओरिजिनल रिसोर्स अपनी वेबसाइट पे है. सो इफ आई एम अ टीचर और इफ आई एम एन इंस्टीट्यूट हु adopts open education resources, so what benefit they would get is that they are getting a brand value, that अगर मैं अपने इस टॉपिक के लिए ढूंढ रही हूँ तो there would be thousands of people who would be searching for this particular content, right? So now they will see कि okay, इस यूनिवर्सिटी ने ये इस टॉपिक पे यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, एंड once I click on this resource it will redirect me to the original website. तो मतलब मैं अपनी साइट पे ट्रैफिक इस तरीके से लेके आ सकती हूँ. So there is a lot of benefit you get if you contribute to open education resources. So these are the ways जहाँ. So see here you will see you can not only download it, you can embed it, और आपको लगता है इसमें आप कुछ और फर्दर ऐड करके, अगर ये इंग्लिश में है तो आप इसको हिंदी में लोकलाइज कर सकते हो, या उस लैंग्वेज में लोकलाइज कर सकते हो जो आपके लर्नर्स के लिए बहुत ईजी है समझना. एंड हेयर यू आर नॉट इन्फ्रिंजिंग एनीबडीज कॉपीराइट बिकॉज दिस इज ऑलरेडी रिलीज अंडर CC-BY. तो वो ओरिजिनल ऑथर आपको बता रहा है कि यू कैन यूज, repurpose my work. Okay, now let's get. So these were the 2 common ways through which you can search content from OER, but there are
many such repositories. So for that, as you might have seen, that there is a lot of enormous power which OER content gives to an educator. So the best way is that I am actually organizing one webinar in the coming week, and I want you to join me in this journey of exploring this treasure of OER, and we will together see what already exists for you. So come and join us for 1.5 hours of transformational webinar, where you would not only be exploring open education resources from various repositories, but will also learn how to integrate them into your own online course, which you can complete in less than 1 month. Yes, you heard me right. You can create your own course within a month with open education resources, and thus making you an edupreneur very quickly. So you can kickstart your own training venture and contribute in Atmanirbhar Bharat. So what are you waiting for? Hurry up, enroll for this webinar and learn these simple tricks to create an excellent online course and start your journey of exploring this huge training industry and be a part of it. So I'll see you soon in the upcoming webinar. Till then, take care and don't forget to click on the link below. Bye.